periodic table. Yes, so modern periodic table, children, you all know, it was designed by Moseley. It was designed by which scientist? Moseley in हेनरी 1971. मॉसले। हाँ, in आपकी वॉइस नहीं 1979. आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? चल ठीक है। आ रही है चल तो देखो, जिसका नहीं आ रहा है हो सकता है कहीं, तो जस्ट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल designed by Moseley, and this periodic table was the elements, they were arranged in increasing order of their atomic number. Atomic number was considered as the basic fundamental things that on which basis the elements were classified. So atomic number, why atomic number has been taken? It was a better result. When atomic number was considered, it was a better result, and almost all the elements were arranged in the increasing order of their atomic number. And it was observed what was modern periodic law? Modern periodic law. Any problem? Modern periodic law states that the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. What does it mean? The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. This means that when you will arrange, yes, कुछ problem है? राजीव, कुछ problem आ रहा है क्या? No, ma'am. No, ma'am. Okay. एक मिनट बस. Periodic law, modern periodic law. What is modern periodic law? Physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. This means that when you will arrange the elements in increasing order of their atomic number, then after a certain period, what is this certain period that I am not explaining? After a certain period, there will be a repetition of the property of the elements. Now, what is this period? Generally, it was observed that after 2, then after 8, then after 18, and then after 32. 2, 8, 18, and 32, there is a repetition of the property. And this is called periodicity. Okay? Now, these numbers 2, 8, 18, and 32 are known as the, you can say, magic number in chemistry, because there is a repetition of property. Now, what is the cause of periodicity? The main problem is, what is the cause of periodicity? Why the elements, the property of the elements repeat after a certain period? So property repeat after a certain period because their electronic configuration is being repeated. When you'll see, their electronic configuration is being repeated. Elements with similar electronic configuration of the valence shell show similar property. Elements with similar electronic configuration of the valence shell show similar property. So after a certain period, after 2 elements, that is hydrogen and helium, then after 2 elements, that is hydrogen and helium, there is the third element, lithium. Then after lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, neon, and then again after 8 elements, the 9th element, sodium. The property of lithium is similar to the property of sodium. Again after 8 elements, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, again the potassium. After 8 elements, again the property is being repeated. Okay. Similarly, अगर आप magnesium से देखते हैं तो again after magnesium,
after 8 elements, the property calcium, the property is being repeated. मतलब आप जब arrange करते हो तो after 2, after 8, after 18, then in the 4th period, again the property is being repeated. So after 18 elements, then here also after 18 elements, property is being repeated. Here after 32 elements, because यहाँ पे 14 और 14 ये elements नीचे लिखे गए हैं. तो यहाँ आपका 18 था, 18 plus 14 is 32. After 32 elements, the property is being repeated. तो ये जो repetition है, periodicity है, ये periodicity क्यों होती है? Because after this certain period, there is a repetition of electronic configuration. तो जितने भी similar electronic configuration valence cell के, they are placed in the same group, and the property of the elements are showing the same characteristic property when the elements are placed in the same group. Next slide. Now I'll just show you the modern periodic law. Just now I've explained what is modern periodic law and cause of periodicity. Now what is group? Group हम किसको कहते हैं? Just you see, जितने भी vertical columns है, all the vertical columns in the periodic table are known as group. There are how many groups? There are 18 groups. ठीक है? हाँ. And the horizontal columns होते हैं, they are known as periods. And how many periods? There are 7 periods. Top to bottom जो columns है, vertical columns, ये 18 है, और ऐसे जो हम देखते हैं वो हाँ 7 periods and 18 groups. Next. Now just see number of elements in different periods. हर period में कितने elements होंगे? तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि प्रिंसिपल शेल में कितने सब शेल होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो देखो पीरियड 1 का मतलब होता है Ma'am, you are paused. Ma'am, you are not audible. शेल और प्रिंसिपल शेल n इज इक्वल टू 1. तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? ऑर्बिटल्स काउंट करना सिखाया है ना? कितने ऑर्बिटल्स होंगे बताइए आप. हाँ, तो ये इसमें ऑर्बिटल 1 होंगे. अगर एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 तो जिस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी तरह से पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2. व्हाट आर दे? हाइड्रोजन एंड हीलियम. ठीक है ना? अब हम आते हैं पीरियड नंबर 2 में. पीरियड नंबर 2 लिथियम से कोई भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी पीरियड आपका स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम NS1. NS से स्टार्ट होता है, NP पे खत्म होता है. कहाँ से स्टार्ट होता है? NS से स्टार्ट होता है और NP पे खत्म होता है. ठीक है ना? N कहीं भी आप देख लीजिए, NS से स्टार्ट होगा, NP पे खत्म होगा. किसी में भी NS से स्टार्ट होगा, NP पे खत्म होगा. कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. कैन विजुअलाइज? Yes, ma'am. तो किसी भी पीरियड में जो आपका जो एलिमेंट्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो वो NS बने वैलेंस सेल का, तो वो NS से स्टार्ट होगा और NP पे खत्म होगा. तो प्रिंसिपल शेल 2, सेकंड प्रिंसिपल शेल में कितने सब शेल होते हैं? 2 सब शेल, S एंड P. S में 1 ऑर्बिटल होता है और P में 3 ऑर्बिटल होते हैं. और S में 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड होता है और P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड होते हैं. 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए. तो इसी तरह से S और P में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए पीरियड 2 में 8 एलिमेंट्स होते हैं. लिथियम से लेकर के आप नियन तक काउंट करिए. लिथियम, फिर बोलो, याद है किसी को? Beryllium, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम. वेरी गुड. तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 35 तक याद है. 8 एलिमेंट्स हो गए. नाउ वी आर मूविंग टू पीरियड 3. पीरियड 3
n इज इक्वल टू 3 और इसमें कितने सबशेल होते हैं 3s and 3p. तो अगेन 2 electrons in s and 6 electrons in p, total 8 electrons. अगेन 8 electrons का मतलब हुआ कि पीरियड 3 में टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे. ये बातें समझ में आ रही है सबको ना? यस मैम. यस मैम. अब आप देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? कहाँ से कहाँ तक है? सोडियम से? मैम सोडियम से आर्गन. यस, सोडियम से आर्गन तक. नाउ पीरियड 4, जब हम पीरियड 4 की बात करते हैं तो पीरियड 4 n इज इक्वल टू 4. जब n इज इक्वल टू 4 होगा तो n 4s से स्टार्ट होगा और 4p पे खत्म होगा. वैलेंस सेल में 4s से स्टार्ट होगा और 4p पे खत्म होगा. अब आप देखिए 4s से स्टार्ट हो रहा है, 4p पे खत्म हो रहा है, तो बीच में 3d भी आता है ना? 4p से पहले 3d अपर रूप में आता है. तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3d में 10 और 4p में 6. टोटल कितने हो गए? 18 हो गए. 2 + 10 + 6 कितने हो गए? 18. तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है. यानी कि पीरियड 4 में कितने एलिमेंट्स आपको मिलेंगे? 18 एलिमेंट्स मिलेंगे. क्लियर? उसी तरह से पीरियड 5 में, पीरियड 5 n इज इक्वल टू 5. So 5s से 5p, 4d is included, total 18 electrons. Period number 6, that is n is equal to 6. यहाँ पे 6s से लेकर 6p तक और 6p से पहले 4f और 5d भी फिलअप होता है अगवा रूल के अनुसार. तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6. याद दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे सबको? यस मैम. 6s में 2, 4f में 14, 5d में 10 एंड 6p में 8, सॉरी 6p में 6. तो टोटल कितने हो गए? 32. यानी कि पीरियड 6 में कितने एलिमेंट्स हैं? 32. और पीरियड 7 में भी 32. दो पीरियड 7 इज नॉट कंप्लीट. यहाँ पर सारे कुछ एलिमेंट्स मैनमेड एलिमेंट्स भी हैं, नेचुरली फाइंडिंग मतलब नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स नहीं है. कुछ एलिमेंट्स बनाया गया है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स अभी कंप्लीट मतलब हम नहीं कह सकते कि पूरा मैनमेड है. नाउ अब बात आती है कि F थोड़ा ब्लॉक्स में हम लोग पढ़ेंगे. कितने SPDF कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? तो देखो ये आप ध्यान से देखो, हमारा जो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है उसमें 4 ब्लॉक हैं. 1 is S block, 1 is P block, 1 is D block and 1 is F block. Can you see on the page? S, G, यस मैम. ये पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं. पूरे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है. तो इनका नाम क्यों दिया गया SPDF? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं देन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन S सबशेल. आप किसी भी S ब्लॉक एलिमेंट्स का आप उठा लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, you will see that the last electron enters in S subshell. ठीक है? तो इसीलिए ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में आता है उन्हें S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. मगर एक बात और ध्यान देना है, आप अगर D में जाते हो ना तो यहाँ पे NS1 NS2 कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है. F में भी आपको NS2 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है. ठीक है? तो इसमें एक बात और है कि ये इनर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड. ये बात ध्यान रखना. S ब्लॉक एलिमेंट्स में द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन S सबशेल एंड द इनर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड. ये बात अपने दिमाग में रखोगे. नाउ P ब्लॉक एलिमेंट्स, why we call them P block? Because while writing the electronic configuration, एक बार फिर से बोलिएगा प्लीज. देखो S ब्लॉक एलिमेंट्स में कहते हैं कि while writing the electronic configuration, the last electron in the valence cell enters in S subshell. किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में एंट्री लेता है तो वो एलिमेंट S ब्लॉक को बिलोंग करता है. ठीक है? ये बात समझ में आ गई? यस मैम. यस. मगर ये हम सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन या जो भी S में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर S1 और 2, यहाँ भी देखो
डी में एस है ना 1 और 2, और एफ में भी आप देखो SnS2 यहाँ भी है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट कॉन्फ़िगरेशन में आपको एस दिख रहा है। तो क्या ये इन सबको हम एस ब्लॉक कहेंगे? नो, इन सबको नहीं कहेंगे। एस ब्लॉक के लिए दो बातें हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंट्री ले, प्लस इनर ऑर्बिटल्स जितने हैं इनके वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। डी और एफ के इनर ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, ठीक है। अब ये पी ब्लॉक है। While writing the elements configuration of the electronic configuration of the element, the last electron enters in np subshell, p subshell में enter करता है। और g block elements किसे कहते हैं? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में, मतलब अगर आपका 4s में इलेक्ट्रॉन गया है, 4s में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5s में जाने के बाद 4d में जाएगा, 6s में जाने के बाद 5d में जाएगा, यानी कि n-1d में जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? n-1d का मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसे कहते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सबशेल में एंट्री ली। वो s ऑर्बिटल ns ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के एंट्री के बाद ही n-1d सबशेल में एंट्री होती है। That's why these elements are known as d block elements. And what are n-1d एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखो, हाँ, n-1d बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। n-d1 कैसे हम लोग लिखते हैं? मान लो आपको हम स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखाना सिखाए थे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। आप जरा कॉन्फ़िगरेशन लिख के कोई मुझे बताओ, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 का इलेक्ट्रॉनिक 3d1 4s2। वेरी गुड। आर्गन 3d1 4s2, बट क्या इलेक्ट्रॉन 3d1 में पहले जाता है, बाद में 4s2 में जाता है? नो मैम। नो, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, 4s2 फिल होती है, तब 3d फिल होता है। तो 4 और 3, तो इसका मतलब ये n-1 है कि नहीं? Yes, ma'am. आप समझ में आया? Yes, ma'am. 4s भरेगा तभी 3d भरेगा, 5s भरेगा तभी 4d भरेगा, 6s भरेगा उसके बाद ही 5d भरेगा। मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बैलेंस सेल के s सबशेल का होगा, उससे एक कम d सबशेल, एक कम। ये 4 है तो ये 3 होगा। Am I clear now? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को डाउट नहीं है ना? नो। तो No, ma'am. अब F No, ब्लॉक ma'am. एलिमेंट क्या? नो डाउट, थैंक यू। F ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, then the last electron must enter in n-2 sub f orbital, n-2 f orbital। मतलब यहाँ पे क्या होगा? फिर आप अव्वा रूल वाला जरूर थोड़ा पेज अगर आपके पास है तो आप देख सकते हो। यहाँ देखो, ns2 में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद n-1d में स्टेबिलिटी के लिए कभी कभी 0 या 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री लेता है, और तब जाकर n-2 f में जाता है। मतलब ये वैलेंस सेल है, ये पेनल्टीमेट सेल है, ये एंटी पेनल्टीमेट सेल है। इज इट क्लियर? ये वैलेंस सेल है, यस मैम। ये उसके एक अंदर वाला n-1 जिसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, और फिर f का हो गया n-2 एंटी पेनल्टीमेट शेल, अंदर से भी एक अंदर वाला, मतलब बाहर वाला, बाहर से एक अंदर वाला, उसके एक और अंदर वाला। तो n-2 हो गया ना, n-2 f में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होगी। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक दो ही केस होता होगा ना, 6s से 4f और 7s से 5f। यस, वेरी गुड। इसमें दो ही केसेस होते हैं, एक लेंथेनाइड सीरीज जिसमें ये 4f होता है, और एक एक्टिनॉइड सीरीज जिसमें ये 5f होता है। दो ही केसेस होते हैं, दो ही सीरीज ही हैं, इनको सीरीज कहते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो पीरियड्स है हमारे, कैसी?
चिल्ड्रन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये पीरियड्स है, यहाँ पर मैंने period दिखाया, ये है आपका फर्स्ट पीरियड जो रेड से दिख रहा है, उसके बाद थोड़ा ब्राउन से दिख रहा है, सेकंड पीरियड येलो से दिख रहा है, थर्ड पीरियड। बेटा थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका एक खास नाम है, इनको टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? टिपिकल एलिमेंट्स। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। Yes. क्यों कहते हैं? आप Ma'am, चाहो तो नोट। मैम ग्रुप Yes. का सारा प्रॉपर्टीज रखते हैं। वेरी गुड। कौन है भाई ये बच्चा? वेरी नाइस। प्रियांशु राज। हाँ, प्रियांशुराज 11 बी। ABC B। वेरी गुड प्रियांशु। B. तो ये टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, देन सोडियम, ये बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, तो ये एलिमेंट्स हर ग्रुप में जो ये एलिमेंट्स होते हैं पीरियड 3 के, दे आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स क्योंकि दे रिप्रेजेंट द कंप्लीट द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप। ये ग्रुप का जो प्रॉपर्टी होता है वो सारा का सारा प्रॉपर्टी ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका लिथियम है, लिथियम ग्रुप का सारा प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है, ये थोड़े से ग्रुप से अलग हटकर एनामोलस शो करता है। ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स जो है थोड़े से एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं, बट पीरियड 3 के एलिमेंट्स जो होते हैं अपने ग्रुप में ये टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये पीरियड का सारा प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड। नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो ये पीरियड्स की बातें हम कह रहे हैं, फिर ये आपका आ गया ग्रीन कलर से आप देख रहे हो पीरियड 4 के एलिमेंट्स है। आप काउंट कर सकते हो टोटल कितने एलिमेंट्स है, 18। ये पीरियड 5 के एलिमेंट्स है और पीरियड 5 के एलिमेंट्स में भी आप काउंट करके देखो टोटल 14 एलिमेंट्स है। हाँ सॉरी 18 ग्रीन वाले में। ग्रीन वाला भी 18 एंड ब्लू वाला भी 18। 2 8 8 18 18। क्लियर? अब हम आते हैं पीरियड 6 में। ब्लू, डार्क ब्लू दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम, वो विजिबल है। ये मैम विजिबल है पूरा। हाँ विजिबल है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये है आपका पीरियड, ये है आपका पीरियड 6 के एलिमेंट्स। बट आप देखो ध्यान से, ये पहला ग्रुप का एलिमेंट है, ये दूसरा ग्रुप का एलिमेंट है, ये तीसरा ग्रुप का एलिमेंट है, दिस इज थर्ड ग्रुप। यहाँ पे लेंथनम है, अगर आप मेन पीरियोडिक टेबल में देखें तो LA लिखा होगा, लेंथनम। ठीक है, लेंथनम। अब यहाँ ब्लैंक क्यों है वहाँ पे? यहाँ पे हमने ब्लैंक क्यों मार्क किया है? यहाँ पे वही मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पे इसलिए ब्लैक मार्क किया गया है कि ये आप देखिए ग्रुप 1 2 3, ये थर्ड ग्रुप है ना। थर्ड ग्रुप में यहाँ से 14 एलिमेंट्स को निकाल के यहाँ रखा गया है। काउंट कर लो इसको, 14 एलिमेंट्स। ये लेंथनम है, ये लेंथनम है, एटॉमिक नंबर 56। उसके बाद यहाँ पे आप देखो मेन पीरियोडिक टेबल में 71, अभी मैं दिखाऊंगी मेन पीरियोडिक टेबल। 57 ना, एक मिनट, मेन पीरियोडिक टेबल में दिखाती हूँ तो बड़ा को। यहाँ देखो, ये है आपका एटॉमिक नंबर 57, देख रहे हो आप? 57 से 71। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे मैं नीचे लेके आती हूँ, यहाँ पे लेंथनम है। लेंथनम जो है दिस इज द एलिमेंट ऑफ D ब्लॉक, मगर इसको F ब्लॉक में रखा गया है। देखो नीचे F ब्लॉक के साथ है, ठीक है, यहाँ पे F ब्लॉक के साथ है। लेंथनम दिखाई दे रहा है सबको? एटॉमिक नंबर 57, इसको F ब्लॉक एलिमेंट के साथ रखा गया है। ये F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f में नहीं जाएगा, बट इनको रखा गया है क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स दे आर फॉलोड बाय, मतलब लेंथनम के बाद ये आते हैं ये 14 एलिमेंट्स। तो लेंथनम के बाद ये 14 एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, F ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप के हैं?
F 6 and block 7. Third group. मैं ग्रुप पूछ रही हूँ बेटा, Group. पीरियड Third group. Third group. वेरी गुड, वेरी group. गुड। ये ग्रुप 3 के हैं। तो एफ Ma'am, ब्लॉक third group एलिमेंट्स के, आर द, ma'am. हाँ यस, ये ध्यान रखना ये बात को। एफ Yes, ब्लॉक ma'am. एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स